तो डर के आगे जीत है। अगर आपने एक बार अपने आप को झोंक दिया किसी भी काम में, तो मैं विश्वास कीजिए, आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है। दुनिया में बेशरम लोग ही कुछ कर पाते हैं, बेशरम जिनके अंदर डर नहीं होता। ज़्यादा सोच विचार करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो पहली बात तो ये चीज़ होनी चाहिए सीखने के मामले में। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कॉन्फिडेंटली कहीं भी बोलिए। आप ये मत सोचिए हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे अच्छी चीज़ों में क्या इज्जत जाएगी, गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सामने वाले से पूछ लो, आप बता दो। और आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल अपनी ईगो को घर पे रख के आइए और सीखने के लिए तैयार रहिए। कई बार बहुत बुरा और नासमझ आदमी भी समझदारी की बात बता सकता है, और कई बार बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी बहुत घटिया स्तर की बात कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कभी अपने मन में कोई माइंड सेट नहीं करना कि अच्छे की ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग अच्छे ही होते हैं और अनपढ़ लोग गंवार ही होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझदारी कहीं भी हो सकती है। और अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसे सुनने में और सीखने में क्या बुराई है, सीखना चाहिए। तो ये बात है कुल मिला के कि शुरुआत में सबको डर लगता है, बाद में उस काम को करते करते आदमी उसके अंदर मास्टर हो जाता है। सेम थिंग, nothing else, only the matter of practice. You say generally it happens that students discuss to each other in after the class or outside of the school or outside of the class that our teacher has enough knowledge about the subject. He explain any theory, he explains any derivation without any book, without any guide, without any textbook. What a great knowledge. And they become our role model. Am I right? We discuss about them after the class. We discuss about the physics teacher, about the chemistry teacher, because these reactions, these derivations, these formulas are very difficult for us, but these formulas are cup of tea for them, very easy for them. Am I right? Very easy for. That is why we discuss about them when we go to the college and we talk about the professor. Wow, what a great knowledge they have. They don't see any book and write 2 3 pages without watching any without seeing any book or any guide or any textbook, any handbook. What a knowledge they have. It's not a knowledge, it's experience. When a person does the same work continuously, he becomes master. He becomes master. Okay. When I ask you to come here to speak here, you can't speak continue. Why? Because you don't have experience. I'm not asking you, I'm not talking about knowledge. Everybody has knowledge, but knowledge delivery is the most important. Sometimes we have knowledge but we don't have the delivery, knowledge delivery, how to deliver the knowledge among the students. So the most important thing is the delivery. Okay. How the Aniruddhachar and Aniruddha and Devki Nandan and Bageshwar, how do they speak, how do they speak continue before the public? Because they have an art to engage the audience. Or what they speak, they do not always speak katha, they speak joke from WhatsApp. They have stolen some jokes from WhatsApp. They have no new jokes, they have no new things to speak. They are speaking some old things on their stage, from their stage, because they have experience of speaking. They start speaking and continue speaking and speaking katha. Sometimes they talk about Hanumanji, sometimes they talk about Ram, sometimes they talk about Sita. The mixing up story, and start discussing about the family issues, about the husband wife, about the son and parents. Okay, children and parents, how should be the behavior of the children and family, how should be parent and their parenting, how should be the relationship between husband and wife. They discuss that. This is katha. They are discussing, but generally the katha should be the totally information about the story, about the story of God. But I think that story very old, that story very old. That is called relevation, that is called a type of a relevance, relevance of story into the present life. ठीक है. How can they connect, how can we connect our story to the present life?
We learn something from these stories. So that is called the katha. So ultimately the thing is that how we get the experience of speaking by the practice. But the practice comes when you do the same thing continuously. Okay, understand? So only the practice. तो देखिए आज हम देख रहे हैं टू बी वर्ब. टू बी वर्ब. टू बी वर्ब क्या होता है भाई? टू बी वर्ब. तो टू बी वर्ब क्या होता है? टू बी वर्ब जो मैंने कल बताया था आपको इज एम आर. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. इज एम आर. ठीक है, वाज, वर और विल बी. ये सब सही लिखा है. ये होता है टू बी वर्ब. बात सही लिखा है. वार वर्ब सही कर, बाद में कहेगी. लिखना ही नहीं आता इनको तो. ठीक है, ओके. इज एम आर वाज वर और विल बी. ठीक है, इज. अब देखो इससे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं. हु इज सी? हु इज सी? हु इज नरेंद्र? हु इज नरेंद्र मोदी? हु इज नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एमपी? ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एमपी? इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना. हु इज सी? व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर? Our national flower. What is our national anthem? Jan Gan Man. Okay. What is our national animal? Tiger. Okay. What is our national tree? Banyan tree. Banyan tree. Okay. Understand? What is your father? जल्दी जल्दी बोलो. What is your father? My father is farmer, worker. ठीक है, shopkeeper, whatever. Okay. What is your mother? My mother is housewife. What is your brother? My brother is student. Simply, what is your brother? Is your brother intelligent? Okay. Is your sister intelligent? Is your sister helping nature? Okay. Is your mother perfect at cooking? Perfect at cooking. Is your father handsome? ठीक है, पुरानी फोटो में देखोगे तो हैंडसम ही लगेंगे. अब थोड़ा सा क्या समय के साथ लगना भी चाहिए, है ना. क्योंकि अब उनके घर में रहते हो तुम, है ना. ये थोड़ी कहोगे कि हैंडसम नहीं है, नहीं भगा देंगे. यस, ओके. तो एम. हु एम आई? हु एम आई? एम आई गुड टीचर? एम आई इंग्लिश टीचर? Am I punctual? Okay. Am I regular in the class? Am I perfect at teaching? Okay. Am I smart? Am I handsome? देखो सही सही बोलो, डिस्काउंट तो होगा ही नहीं. अगर नहीं भी बोलोगे तो भी डिस्काउंट सोच रहे डिस्काउंट हो जाएगा. डिस्काउंट तो होगा नहीं, फीस तो पूरी लगेगी. इसलिए जो बोलना है वो बोल लो तुम सब जो मन में है. ठीक है, ओके. एम आई गुड टीचर? एम आई इंडियन? ओके. आर यू, अब आपके लिए, आर यू स्टूडेंट? आर यू इंटेलिजेंट? आर यू ऑनेस्ट? आर यू सिंसियर? आर यू ब्यूटीफुल? ओके ओके. नहीं नहीं, खुद को ब्यूटीफुल और हैंडसम मानना ही चाहिए. तुम खुद ही नहीं मानोगे तो दुनिया कैसे मानेगी? दुनिया कुछ माने क्या? दुनिया कुछ माने उससे पहले हमें मानना पड़ता है ना खुद को, है ना, तब तो दुनिया मानेगी. आर यू इंडियन? आर यू स्मार्ट?
आर यू सिंसियर? ओके। आर यू परफेक्ट एट कुकिंग? परफेक्ट एट कुकिंग, पकाने में परफेक्ट हो आप लोग? खाना वाना बना लेते होगे ना, बना ही लेते होगे जनरली, ठीक है। अब आजकल तो जब से यूट्यूब आया है हर आदमी परफेक्ट है, यूट्यूब में देख के सब बन जाता है। क्या सीखना है उसमें देखो, बना लो, नई नई डिश ट्राई कर लो उसमें, है ना। ओके। आर यू परफेक्ट, एक मिनट, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? फॉन्ड ऑफ मतलब होता है का शौकीन, फॉन्ड ऑफ एक शब्द है, इसका मतलब होता है का शौकीन। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आपको डांस का शौकीन है? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? यस आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? शौक है आपको। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? आपको किस चीज का शौक है? आई एम फॉन्ड ऑफ, अपने अपनी चीजें बताओ जिस चीज का शौक है, जल्दी बताओ। डांसिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब स्टिचिंग। ओके यस, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अच्छा, ये फास्ट फूड खाने का शौक है, ये शौक कम कर देना, है ना। फास्ट फूड नुकसान करता है ज़्यादा। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ओके गुड। तो तुम गाना सुनाई देना कभी, स्टिचिंग का परफॉर्मेंस तो देख नहीं सकते, तुम पैसे कमाती होगी फिर तो, है ना। बहुत बढ़िया। क्या? हाँ वही अच्छी बात है ना, कमाने लगे अब तो देखो, कैसे भी कुछ ना कुछ जैसा एक्स्ट्रा हुनर तो हो कि जिससे पैसे भी आए। और अच्छा अच्छा फिर उसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है ना, वो तो छात्रवृत्ति मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? ठीक, समझ में आया। चलो, अब वाज, वाज का प्रयोग करते था के लिए पास्ट में, एक बार प्रैक्टिस करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसलिए डोंट डू दिस। जैसे कि, तो जैसे कि वह गरीब था, ही वाज पुअर। वह अमीर था, वह ईमानदार था, ही वाज ऑनेस्ट। वह वह शक्तिशाली था, ही वाज पावरफुल। ठीक है। वह बहुत सुंदर था, वेरी हैंडसम। समझ में आया वाज का प्रयोग। अब जरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं पास्ट के। हु वाज महात्मा गांधी? ग्रेट लीडर। हु वाज अमरसपुरी? इज नहीं, वाज। अमरसपुरी वाज एक्टर, विलेन का रोल करता था, पर एक्टरों में आते हैं वो सभी लोग, विलन नहीं बोलेंगे, विलन का मतलब तो वो हो जाएगा, है ना। भाई गुंडा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसे विलन कह रहे हैं, ठीक है। तो हु वाज अमरसपुरी? अमरसपुरी वाज एक्टर। हु वाज श्रीदेवी? हु वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी? हु वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी? यस, शिवराज सिंह चौहान वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। ओके, तो समझ में आया, बात का मतलब पुरानी चीजों के लिए लगाते हैं, ये क्लियर हुआ आपका। ऐसे ही पूछते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन, कहने में बड़ा इजी लगता है पर जल्दबाजी में बोल नहीं पाते, इसलिए आना चाहिए प्रैक्टिस। कहने में आ रहा है टू बी वर्ब है, उसमें है ही क्या, इतना इजी तो है, पर नहीं बन पाता। अब देखो मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, वर मतलब होता है क्या, थे। आपके लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछूंगा सब। वर यू इन द क्लास एस्टरडे? गलत बोल दिया। यस आई वाज। आप क्या बोलोगे? आई वाज। भाई मैं तुम सबके लिए पूछूंगा, लेकिन तुम अपना बताओगे तो वाज लगाओगे ना। हाँ, अगर एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा यस बी वर तो बात अलग है, लेकिन तुम अपना अपना बता रहे, ठीक है। वर यू इन द क्लास एस्टरडे? आई वाज ही लगाओ, आप तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बर फिर सब लोग आई वाज बोलेंगे, कुछ बर बोलेंगे तो मिक्स होगा, ठीक है। वर यू इन द क्लास एस्टरडे? यस आई वाज इन द क्लास एस्टरडे। वर यू इन द क्लास एस्टरडे? Yes, I was in the class yesterday. Okay. Were you in the market yesterday? Yes, I was in the market yesterday. Okay. Were you at home yesterday? Yes, I was at home yesterday. घर पे ही रहोगे कल, कहाँ जाओगे, ठीक है, घर पे ही थे, ठीक है। ओके। Were you in the Were you in the college yesterday?
कॉलेज में थे? नो आई वॉज नॉट। वो थे तो आई वॉज बोल दो। नो आई वॉज नॉट इन द कॉलेज एस्टरडे। चलो, विल बी मतलब क्या होता है? होगा। अब यही क्वेश्चन मैं भविष्य के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। विल यू बी इन द क्लास टुमारो? आई विल बी इन द क्लास टुमारो। विल यू बी इन द क्लास टुमारो? यस, आई विल बी। I will be in the class tomorrow. Will you be in the market tomorrow? क्या तुम कल बाजार मार्केट में रहोगे? Will you be in the market tomorrow? No, I will not be in the market tomorrow. Will you be doctor in future? Will you be doctor in future? अति will you be doctor in future? और खांसी हो जाएगी बेटा, लो वैसे ही तो इतनी खतरनाक खांसी चल रही है। Will you be doctor tomorrow? कल डॉक्टर हो जाओगे तुम? इतने जल्दी थोड़ी कोई जादू की छड़ी है कि मंत्र मारा और डॉक्टर बन गए। विल यू बी डॉक्टर टुमारो? नो, आई विल नॉट बी डॉक्टर टुमारो। यस यस, ऑफ कोर्स। ओके, मिस्टर अनुज स्विच ऑन द फैन। ओके, विल यू बी, व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर? आप भविष्य में क्या बनोगे जरा बताओ। व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर? आपको बोलना आई विल बी और जो बनोगे वो। तुम बताओ यहाँ से, व्हाट विल यू बी? आई विल बी फार्मासिस्ट। यस, आई विल बी फैशन डिजाइनर। यू विल बी बिगेस्ट कोरियोग्राफर, सबसे बड़ी। ओके, फार्मासिस्ट। यू आल्सो बी द फार्मासिस्ट। ओके, दैट फैशन वालों का थोड़ा सा लगता है कि कितनी फैशन तो आ गई और क्या नया बनाओगे तुम, कितनी टाइप की फैशन आ चुकी, क्या नया सोचोगे। अब हम, ये तो टू बी वर्ब हो गया। कुछ सेंटेंस लिखो जो इसके घर से करके लाएंगे आप लोग। जैसे कि क्या आप, क्या आप क्या आप इस क्लास में, क्या आप इस क्लास में नए हैं? फिर लिखो दूसरा, आप इतने, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने दुखी क्यों हैं? तीसरा लिखो, वह आपकी कौन है? वह आपकी कौन है? कल कौन आपके साथ, सॉरी, कल कौन आपके साथ था? कल कौन आपके साथ था? फिर लिखो, एक दिन वह बड़ा आदमी, एक दिन वह बड़ा आदमी होगा। फिर लिखो, क्या तुम, क्या तुम बाजार में थे? क्या तुम बाजार में थे? ये लिख लो, क्या तुम बाजार में थे? फिर लिखो, आपकी क्लास कहाँ है? आपकी क्लास कहाँ है? आपका इंग्लिश टीचर, आपका इंग्लिश टीचर कौन है? क्या आपको, क्या आपको नाचने का शौक है?
बड़ा स्मूथ चलता है, ये से बड़े संभाल के चलाना पड़ता, नहीं तो कुछ का कुछ लिखाता है। क्या आपको नाचने का शौक है? ठीक है, फिर लिखो क्या मैं, हाँ बोलिए। आस्क टू योर मॉम, गो टू मॉम एंड आस्क। ओके, लो टेक दिस। ओके थैंक्स, वेलकम। क्या मैं सही हूं? क्या ये लड़की पागल है? क्या यह लड़की पागल है? लिख लो जल्दी, ये देखो लिखवा भी दिया, करके भी लाना है, क्या लड़की पागल है? ठीक है।